Hello students, welcome to the online video class. Today we are going to learn about the fourth chapter, mangoes around the year. In previous video we have discussed about the how do the food is spoil, in which season the food is spoil speed is faster, and the how the BG return this bread on the shopkeeper. Now these all points already seen in the previous video. Now let's see the next point of this chapter in this video. So let's start. The next point is how does food get spoiled? How does food get spoiled? Page number 37. Now open your book, page number 37. So how does food get spoiled? Now we have an activity. In this activity you have to take a bread. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है आपको, इस यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है. नाउ वी हैव टू टेक अ ब्रेड और रोटी. Okay, the whole class can do this experiment together. Take a piece of bread or roti, sprinkle a few drop of water on it. आपको क्या करना है, एक ब्रेड का या रोटी का थोड़ा सा पीस लेना है और उसके ऊपर क्या करना है, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी वाटर के कुछ क्या करना है, स्प्रिंकल करना है, यानी हम बोलते हैं कि उनके ऊपर थोड़ा से वाटर की बूंदे डालनी. देन एंड पुट इट इन द बॉक्स, और उसे एक बॉक्स में बंद करना है. क्लोज द बॉक्स, सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट. और आपको क्या करना है, वो बॉक्स क्लोज करना है और सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट. और आपको क्या करना है, वो बंद करने के बाद हर दिन उसके जो चेंजेस होते हैं उस ब्रेड और रोटी के ऊपर वो आपको देखने. मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम. फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन. उसके बाद आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है और उसके ऊपर जो भी चेंजेस होते हैं, ओके, सो आपको वो राइट करने हैं. सो व्हाट इज द एक्टिविटी? इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू टेक अ ब्रेड और रोटी. नाउ यू हैव टू स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, and after going this activity you will see these changes in the bread or roti, and so by touch you will find the what changes in this bread or roti. So next is here this changes table is given that, and then what changes is happen in this bread or रोटी. सो चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी में क्या चेंजेस होते हैं? सो बाय टच यू विल फाइंड दैट फर्स्ट हियर द डेज, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे एंड सिक्स्थ डे. दैट फर्स्ट एंड सेकेंड डे, that the first day, second day and third day the bread is by touching you will find you find the bread has wet and soft. वेट यानी थोड़ा सा क्या होता हो जाता है, वो वेट यानी थोड़ा सा गीला, वेट. एंड थर्ड डे भी, सेकेंड डे एंड थर्ड डे you will find the same changes. Bread is soft and wet. And the fourth day the bread has made a moist and softer. और भी क्या हो जाता है, सॉफ्ट, और वो और भी गीला होने लगता है. सो एंड द फिफ्थ डे अगेन you see the changes, only moisture and soft. And in 6th day from the fourth, fifth and 6th days we'll find a little weight and a softness in the bread is increases. And bread in the fourth, fifth and 6th day you will see the bread is moist and softness is increases. Okay, now let's talk about the by smell. So what is the change of this smell of this bread and roti? So smell में क्या changes होते हैं उस रोटी और bread में? So on the first day the smell is a light smell, यानी उसका क्या होता है, थोड़ा सा light smell होता है on the first day. In second day and third day the smell is light stinking, and the fourth day the stinking smell is
increasing, and then 5th day and 6th day the bread smell is very bad, यानी वो स्मेल जो होता है वो गंदा स्मेल क्या होता है, बढ़ जाता है ऑन द 5th and 6th day. Now let's talk about the by looking through hand lens. सो उसकी जो लेंस यानी उसको हाथ में पकड़ने से क्या होता है, तो नॉर्मल कैसे दिखता है, नॉर्मल ऑन द फर्स्ट डे. इन द सेकेंड डे द वेलवेट लाइक अ ग्रोथ, उसके ऊपर क्या होती है, वेलवेट की तरह, वेलवेट जैसे लाइक एज अ वेलवेट उसकी तरह से ग्रोथ होती है उस ब्रेड के ऊपर. देन ऑन थर्ड डे लाइक अ वेलवेट एंड वाइट लाइक ग्रोथ, यानी उसके ऊपर वाइट कुछ स्पोर्स होते हैं, उसकी ग्रोथ होती है. देन ऑन फोर्थ डे द फोर्थ एंड फिफ्थ डे ग्रीनिश इन वाइट लेयर, उसके ऊपर ऐसे ग्रीनिश जैसा ये क्या होता है, वाइट लेयर इंक्रीज होता है. और फोर्थ डे, फिफ्थ डे एंड सिक्स डे, ओके, यानी उसका जो ग्रीनिश कलर होता है वो बढ़ता जाता है. नाउ लास्ट वन इज लेट्स टॉक अबाउट द कलर. सो कलर कैसे होता है. सो फर्स्ट डे द कलर ऑफ दिस ब्रेड इज नॉर्मल. सेकेंड डे increases the color, say make the color white, and the last the third, fourth, fifth and sixth day this bread color is make a greenish or white, थोड़ा सा greenish और white color क्या होता है उसका बनता है. Now let's see the some questions. So here the some question is given there. Now I read this question. Find out the reason for these changes. From where did the fungus come on the bread? So find out the reason for these changes. ये changes क्यों होते ब्रेड के ऊपर. Okay, find out these changes and from where did the fungus come on the bread. ये जो फंगस होती है वो ब्रेड के ऊपर कहाँ से आती है. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन आंसर इज दिस चेंजेस occur because of rotting of or bread, rotting of bread. This changes occurs because of rotting of bread. The spores of fungus, जो फंगस के जो स्पोर होते हैं, the spores of fungus are present in the ear. ये जो फंगस के छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं वो ईयर में प्रेजेंट होते हैं. एंड व्हेन दे गेट अ मॉइस्ट सरफेस एंड फूड दे बिगेन टू ग्रो. ये जो फंगस होती है अगर उसको थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया मिल जाता है या गीला होता है तो वहाँ पे इसकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी तरह से होती है. सो द व्हेन दे गेट अ मॉइस्ट सरफेस एंड फूड दे बिगेन्स टू ग्रो. उसके वहाँ पे जो फूड होता है हमारा फूड, उसके ऊपर हमने क्या डाला था, और थोड़े से वाटर के स्प्रिंकल ड्रॉप डाले थे तो उसकी वजह से वो मॉइस्ट हो गया. और वो मॉइस्ट के ऊपर क्या होता है, फंगस की ग्रोथ अच्छी तरह से होती है. सो दिस क्वेश्चन आंसर इज दिस चेंजेस occur बिकॉज ऑफ रोटिंग ऑफ ब्रेड एंड द स्पोर ऑफ दिस फंगस आर प्रेजेंट इन द our ear and when they get a moist surface and food they begin to grow. The next question is different kind of food items spoil due to different reasons. Some food spoil soon, some stay good for long. List some season and condition in which food spoil quickly. List some seasons, यानी आपको कौन से, आपको लिस्ट बताने की कौन से सीजन में और कौन सी कंडीशन में फूड क्या होता है, फास्टली खराब हो जाता है यानी स्पॉइल हो जाता है. नाउ दिस क्वेश्चन आंसर आई थिंक फूड स्पॉइल क्विकली इन समर एंड रेनी सीजन. यानी जो फूड का जो स्पॉइल होने का काम है वो सबसे ज़्यादा कौन से सीजन में होता है, द फूड स्पॉइल क्विकली इन समर एंड रेनी सीजन. एट विच कंडीशन द मिल्क इज नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली. मिल्क कैसे कब फास्टली खराब होता है, सो मिल्क इज नॉट बॉइल्ड properly. Pickles are not kept from moisture or safe from moisture or air. अगर pickles भी हमने अच्छी तरह से अच्छी जगह kept safe from moisture और air तो ये भी क्या हो जाता है, खराब हो जाए. So these are the things. So food spoil quickly in summer and rainy season. Now the next question is given below are some food item and some simple methods by which these could be kept this for 1-2 days. Match the following correct pair. So milk food item is milk,
cooked rice and green coriander, ओनियन एंड गार्लिक. सो हम कौन सी मेथड का यूज करके उसको क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं. ओके, देन फ्रेश रख सकते हैं. सो मिल्क I think put in bowl and keep the bowl in a container with some water. Wrap the damp cloth, boil it, keep it in a dry open place. So milk को हम कौन सी मेथड से अच्छी तरह से रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. वह फूड बॉइल, मिल्क बॉइल इट. ओके, सो ग्रीन कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन्स धनिया, जो हमारा धनिया होता है वो हम क्या कर सकते हैं, रैप. और जो होता है कुकड राइस, वो क्या कर सकते हैं, कुकड राइस यानी हम जो राइस खाते हैं वो राइस हम किस तरह से अच्छी तरह से रख सकते हैं. पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर. एंड ग्रीन कोरिएंडर wrap in a damp clothes. Okay, and then onion and garlic, keep it in dry and open place. So in this method, all these things are food item preserved by this method. Okay, now children, here some questions, and I explain this all the questions answer. Now first is, what is food spoilage? What is a food spoilage? Food spoilage means क्या होता है. Now the condition when our food become unfit for our consumption is called a food spoilage. Food spoilage means क्या होता है, फूड खराब होना. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, द कंडीशन when our food become unfit for our consumption is called a food spoilage. So how the food gets spoiled? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ माई. फूड स्पॉइल होना मीन्स क्या कहते हैं, व्हाट इज अ फूड स्पॉइलेज. फूड स्पॉइलेज होना मीन्स क्या होता है, सो फूड गेट स्पॉइल बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट. सो उस फूड्स के ऊपर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अच्छी तरह से होती है. सो दिस इज कॉल्ड एज फूड स्पॉइलेज. सो व्हाट आर द कंडीशंस इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोज, दे in this in which conditions, what are the condition in which microorganism is grow. कौन सी condition में microorganisms की growth अच्छी तरह से होते हैं. So first there are 3 condition. First one is presence of air, presence of moisture and presence of warm temperature. यानी एयर में एंड मॉइस्चर सरफेस पे और वार्म टेम्परेचर में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से होती है. और दैट्स वाई इन द रेनी सीजन एंड समर सीजन द फूड स्पॉइल quickly. Okay, so in these 3 condition the microorganism growth is fastly. So these 3 reasons they when the microorganism growth in our फूड. सो इन 3 कंडीशन से क्या होता है, हमारे फूड के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द ईयर. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीवाणु और कीटाणु, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द ईयर बट वी कैन नॉट सी देम विथ अवर आईज. लेकिन हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे आईज से देख सकते हैं क्या, नहीं. सो बट वी कैन नॉट सी देम विथ अवर eyes. When they get moist environment and warm temperature, the growth is start. Okay, और लेकिन जब उनको moist area या warm temperature मिलता है तो उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से होती है. So what we can do, the stop food getting spoilage. हम फूड का स्पॉइलेज कैसे रख सकते हैं. व्हाट वी कैन डू टू स्टॉप फूड गेटिंग स्पॉइल. यानी फूड खराब होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिमूव द फर्स्ट वन इज रिमूव द मॉइस्चर, एयर एंड वार्म टेम्परेचर. एंड यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फूड आइटम में से जो मॉइस्चर होता है, उसका जो एयर होता है या वार्म टेम्परेचर जो होता है उसको रिमूव करके हम फूड को स्पॉइल होने से रोक सकते हैं. एंड ऐड अ फूड प्रिजर्वेटिव्स. सो व्हाट इज मीन बाय प्रिजर्वेटिव्स. सो प्रिजर्वेशन क्या होता है, प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है कि फूड आइटम्स को लॉन्ग टाइम तक अच्छी तरह से रखने के लिए कुछ प्रिजर्वेटर्स होते हैं, वो हम उस फूड में ऐड करके क्या करते हैं, उनको ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं अच्छी तरह से. ओके, सो व्हाट इज अ फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन मीन्स व्हाट, the methods by which we can delay, prevent the food from
गेटिंग अ स्पॉइल्स। यानी फूड प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है, द मेथड बाय विच वी कैन प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। यानी फूड खराब होने से क्या रोकने के लिए जो मेथड्स यूज करते हैं उसे हम प्रिजर्वेशन कहते हैं। ओके, सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन की भी कुछ मेथड्स है। सो लाइक एज अ फ्रीजिंग, ड्राइंग, सॉल्टिंग, पिकलिंग, एडिंग शुगर, स्मोकिंग फूड, कैनिंग, okay, and adding preservation. these are the methods of food preservation। यानी फूड हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, उस प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी उसको खराब होने से रोक सकते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग। सो फ्रीजिंग मीन्स क्या कर सकता है, आपको पता है हम जो हमारे घर पे जो सब्जियां लाते हैं वो हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होती। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। सो व्हाट आर द फूड प्रिजर्वेटर्स। फूड प्रिजर्वेटर क्या होता है, प्रिजर्वेशन इज डिफरेंट एंड प्रिजर्वेटर इज different। So what are the food preservators? So food preservatives prevent the growth of microorganism and slow down the process of food spoilage। ये जो फूड प्रिजर्वेटर्स है वो क्या करते हैं, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ फास्टली होने के लिए रोकने का काम ये प्रिजर्वेटर्स करते हैं। एंड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ फूड स्पॉइलेज, यानी फूड जो खराब होने का काम है वो उसकी प्रोसेस उसको स्लो कर देते हैं। ओके, सो द फूड प्रिजर्वेशन मेथड now see one by one। so drying method। so what is the drying method? ड्राइंग करना मीन्स के ड्राई करके भी हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। सो क्या है ड्राइंग मेथड, टू ड्राइंग आउट वाटर कंटेन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। टू ड्राइंग आउट वाटर कंटेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल। सो वी कैन डू इट इन आवर होम। ये आप आपके घर पे भी ये मेथड्स का यूज करके फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। टू ड्राइंग आउट वाटर, यानी आप जो कंटेंट्स होते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स उसमें से वाटर निकाल के क्या कर सकते हैं, फूड को ड्राई कर सकते हैं। देन जस्ट द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इन स्मॉल पीसेस ऑफ वॉश एंड ड्राई। क्या कर सकते हैं आपको उसमें क्या कर सकते हैं, इस मेथड में वी कैन डू इट इन योर home also। just cut the vegetables or fruit in a small pieces। आपको क्या करना है, अगर फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो उसको क्या करना है, स्मॉल पीसेस में कट करना है। एंड वॉश एंड ड्राई इट एंड देन पुट इट इन द ओवन ट्रे। आपको क्या करना है, उसको वॉश करके और ड्राई करके जो ओवन ट्रे होता है उसमें रखना है। एंड देन हीट इट इन द ओवन फॉर 180 डिग्री। उसको क्या करना है, 180 डिग्री हीट देनी है फॉर अ 10 मिनट्स की हीट देनी है। एंड हियर आर द ड्राई फ्रूट्स फॉर ईयर राउंड द ईयर कंजम्पशन। और इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं आपको पता है आंवला कैंडी जो होती है वो ड्राई फ्रूट्स होते। सो वो ड्राई फ्रूट्स इसी तरह से इस मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं और ये 1 साल तक अच्छी तरह से हम रख सकते हैं। सो नेक्स्ट मेथड इज एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रिजर्व द फिश भी हम क्या कर सकते हैं, फिश ड्राइंग इफ यू मस्ट हैव सीन इन मेनी किड्स of dry fishes which is all around the year। next one is method is a smoking। so what is a smoking method? when food are smoking to remove the water from them and we can use them throughout the year। यानी फूड का हम क्या कर सकते हैं, वाटर निकल के हम उसे पूरे ईयर तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग मीन्स व्हाट, so where we remove the all the air from the food containing packets। जो फूड कंटेनिंग पैकेट्स होते हैं उसमें से पूरी एयर जो है हम बाहर निकाल के क्या कर सकते हैं, दिस कॉल्ड एयर को बाहर निकाल के क्या कर सकते हैं, उसको हम उसके बीच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुकवा सकते हैं। सो वेयर वी रिमूव ऑल द एयर्स फ्रॉम द फूड कंटेनिंग पैकेट्स। so if air is not present in the microorganism are also unable to growth। यानी अगर एयर ही नहीं होगी तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती है। सो वी कैन प्रिजर्व और इन दिस वे वी कैन प्रिजर्व द फूड। देन नेक्स्ट वन मेथड इज सॉल्टिंग एंड पिकलिंग। यू नो दैट दिस मेथड सॉल्टिंग एंड pickling is another method very common in our
country. So we preserve our food by making pickles. Pickles पता है ना आपको, हम करते हैं मैंगो का pickles, लोंचे हम बोलते हैं उसको. So we preserve our food by making pickles. Cloves of salts and oil along with the spices are added in the food item. Salt and oil हम क्या कर सकते हैं, पिकल्स करके उसको फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. सो क्लॉथ्स ऑफ सॉल्ट्स एंड ऑयल अलॉन्ग विद द स्पाइसेस आर एडेड इन दिस मटेरियल एंड फूड आइटम्स एंड सॉल्ट एंड ऑयल. इन दिस पिकल सॉल्ट एंड ऑयल इज अ प्रिवेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसमें से जो सॉल्ट और ऑयल होता है वो क्या करता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने का काम करता है. सो टू ड्रॉ इन इट एंड prevent to our food for spoilage, from spoilage. Then next one method is jamming. You know that jamming. So or jamming is adding lot of sugar. Microorganism cannot grow too much of sugar, and that is why our jam, jelly, muramba is don't get spoiled. And jamming means adding a lot of sugar. और जब शुगर ज़्यादा होती तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ वहाँ पे नहीं होती है. सो दैट्स वाई द अवर जाम जेली, जो आप जाम खाते हैं ना, जाम जेली, सो दिस मुरम्बा इज डोंट गेट स्पॉइल बिकॉज ऑफ दे कंटेन अ लॉट ऑफ शुगर. देन नेक्स्ट मेथड इज स्कैनिंग. सो व्हाट इज अ स्कैनिंग मेथड? सो वेयर फूड आर केप्ट इन अ स्टेरिलाइज टीन कैन. यहाँ पे स्कैनिंग मेथड मीन्स क्या होता है कि फूड क्या करते हैं, एक स्टेरिलाइज टीन में रखते एंड सील करते. इट प्रिवेंट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर इनटू द कैन. और इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एंट्री नहीं कर सकते. सो दिस इज कॉल्ड एज स्कैनिंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. सो व्हाट इज द स्कैनिंग मेथड? वेयर फूड आर केप्ट इन स्टेरिलाइज्ड टीन कैन एंड सील्ड, इट prevent is microorganism to enter into the can. This is called as scanning method of food preservation. So here we have these are the methods of food preservation. So now today we stop here, and next point of this chapter, summer treat and Mamidi Tandra, will discuss in next video. Thank you.